Hello my dear friends, welcome to my channel GK India. Today I start this video with a very interesting topic of polity. I hope you all would like my video and subscribe my channel. So friends, today's our topic is election system in India. Before going to start with the composition and function or methods, we will let you know about some general facts regarding election system in India. So friends, in our country, first general election held in 1951 to 1952. In this election, 17.3 crore voters registered, and slowly afterwards some changes are there. If we talk about Article 326, which enables यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आर्टिकल है हमारा जो कि राइट टू वोट को प्रोवाइड करता है हमें. ध्यान रखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट. सो फ्रेंड्स, इन 1988 देयर वाज सम चेंज इन आर्टिकल 326. दिस आर्टिकल इज enable voting age of 21 years. But in 1988, 61st Amendment Act, and with this amendment, voting age reduced by 18 years. यानी कि हम कह सकते हैं कि 1988 में वोटिंग एज, यानी जो वोटिंग एज हुआ करती थी सिटीजन्स ऑफ इंडिया की, वो 18 इयर्स नहीं थी, बल्कि वो 20 इयर्स थी. हाउ मेनी इयर्स? सॉरी, 21 इयर्स. लेकिन एक अधिनियम पास होता है, उससे 21 से एज 18 हो गई. ठीक है, वो अधिनियम कौन सा था? 61st Amendment Act. Okay. So friends, let's come on our main topic. Our main topic is election system in India. As you all know that elections are a significant part of the Indian democratic structure. Elections in India are held for the Lok Sabha and Rajya Sabha, the state legislative assemblies, Vidhan Sabha and the Legislative Council, विधान परिषद. इलेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में. इलेक्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी कि हम अपने सही रिप्रेजेंटेटिव को, सही पॉलिटिकल लीडर को इलेक्ट कर सकें फॉर द betterment of our nation. So friends, as we earlier discussed about Article 324 of India. Article 324 of India Constitution explains about the provision of Election Commission in India. Let us study various type of elections in India and also about the world. या वर्ल्ड के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इंडिया के बारे में पढ़ते हैं. जो इलेक्शन कमीशन है वही हमारी इंडिया में, हमारी नेशन में इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इन आवर डेमोक्रेटिक कंट्री, इलेक्शन मेक अ फंडामेंटल प्रोसेस. इन सिंपल टर्म वी कैन सी दैट election is the process of voting to choose someone as your political leader or representative in the government, as right to vote is a legal right of the citizen of India which can influence the decision about how their country is governed. ये इंडिया में हर सिटीजन का अधिकार है कि अब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके जो उसके हित के लिए बेहतर हो. So friends, now we will discuss about some basic facts of election
Recently we have seen in 2019 it was 23rd general election and 90 crore voters are registered in that election. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार जनरल इलेक्शन टर्म यूज कर रहा हूं. जनरल इलेक्शन के अलावा और भी इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, लीगल काउंसिल इलेक्शन, जिसको हम कहते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन. ओके, I tell you for your kind information. So we will discuss about importance of election. Let us tell you that Article 324 to 325 in Part 15 of the Constitution deals with the electoral system of India. Article 324 of the Indian Constitution provide for an independent election commission in order to ensure free and fair elections in the country. Part 15 आर्टिकल 324 से 329 ये प्रोवाइड करता है इलेक्शंस को, और इसका कहना है कि हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन होगा जो कि एक इलेक्शन कंडक्ट करवा सकेगा फ्री एंड फेयर मैनर में, विदाउट एनी या वी कैन से विदाउट एनी फेक इलेक्शन. दैट्स ऑल. इसके अलावा पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, स्टेट इलेक्शन होते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन सॉरी, और प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट, वो अलग चीज़ है, उसको इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करवाता. The elections of Lok Sabha and the state assemblies are be on the basis of adult franchise. जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे आधारित हैं. Thus every person who is a citizen of India and who is 18 years of age, यानी वो इंडिया का नागरिक जो 18 साल का है, वो वोट करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इनेबल है, यानी अलाउ है उसको. वो डिस्क्वालिफाइड हो सकता है अलग कंडीशंस में जिसको हमारा संविधान प्रोवाइड नहीं करता. वो कंडीशंस हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रेसिडेंस, अनसाउंड माइंड पर्सन, ए क्रिमिनल पर्सन और करप्ट पर्सन, और ए पर्सन हु डज नॉट कंडक्ट लीगल प्रैक्टिसेस. So India is the mother of all democracy. We already know this fact. India is the largest democracy in the world. So there should be a free and fair election should be here in our country. Friends, now we will discuss about types of elections in India. This is very interesting topic. Types of election in India. This topic is very interesting for your competitive exam point of view, for your kind information, for your general knowledge and your class perspective. Yeah, we discuss elections form a vital part of the Indian democratic system and decide the functioning of the country and thus its economy. Elections are the way and tool for people to elect their representative from specific political parties who then run the country. Being a democratic republic, while the president is the head of the country. जो president होता है वो country का head होता है. The prime minister is the head of the government in India. जो prime minister होता है वो head होता है government का, present government या जो भी. Elections are conducted as per constitutional provision and the laws made by the parliament. Article 324 of Indian Constitution explains about the provision of Election Commission in India. जो आर्टिकल 324 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है इलेक्शंस को, इलेक्शन कमीशन
इन इंडिया। जैसा कि मैंने बताया कि 324 आर्टिकल कहता है कि हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। ओके, इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा, या राज्यसभा की इलेक्शंस और लोकसभा की द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, जिसे हम विधान परिषद बोलते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस Presidential elections, all elected members of legislative assemblies and member of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, elect the president of India. जितने मेंबर होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं। The nomination of a candidate for election to the office of the president must be subscribed by at least 50 electors. फ्रेंड्स, ये जो नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट का, उसमें 50 इलेक्टर्स होते हैं एज अ प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स होते हैं एज अ सेकेंडर्स। जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो एक सीक्रेट बैलॉट के माध्यम से होता है। उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चलता है। The winner of the presidential election is not the person who gets the most number of votes, but the person who gets more votes than a certain quota. The quota is decided by adding up the votes polled for each candidate, dividing the sum by 2 and adding 1 to the quotient. यानी जो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वो बहुत अहम रोल प्ले करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जिससे कि प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जनरल इलेक्शंस। लोकसभा, जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं और लोअर हाउसेस के मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में, वो चयनित किए जाते हैं डायरेक्टली। किसके थ्रू? वो डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू, जो कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया करते हैं। ये जो इलेक्शंस हैं हर 5 साल बाद होते हैं, वेयर एवरी एडल्ट एलिजिबल वोटर, हर व्यक्ति इसमें जो है, जो कि 18 साल की उसकी एज है, वो अपना वोट कास्ट कर सकता है विदाउट एनी सोशल स्टेटस, रिलीजन, कास्ट, रेस और एनी एथनिसिटी, जो कि इंडिया से होना चाहिए बस, और अपनी कंसर्ट कंस्टिट्यूएंसी से होना चाहिए, वो वोट कास्ट कर सकता है। जो कैंडिडेट लोकसभा में इलेक्शंस जीत जाते हैं, वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और अपनी सीट होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ओके, 5 साल के लिए वो बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 552, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है हाउस की, लोकसभा की, वो 552 होती है, जिसमें 530 मेंबर स्टेट से चयनित होते हैं और 20 मेंबर यूनियन टेरिटरीज से होते हैं और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। एनी पार्टी, कोई भी पार्टी 272 एमपीज अपने क्लेम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो पार्टी अलायंस नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राज्यसभा इलेक्शंस की। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जनरल इलेक्शंस, और वी कैन से लोअर हाउस और लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं राज्यसभा में और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के थ्रू इलेक्ट नहीं होते, बल्कि members are rather elected by the candidates who have already won the Lok Sabha election or
हु वर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के जो जीते हुए मेंबर्स होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स के थ्रू जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा में 250 मेंबर्स से ज्यादा नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 12 मेंबर्स उसमें अर्न होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस एंड आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के हर एक मेंबर का टेन्योर 6 इयर्स होता है, लेकिन 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल बाद। राज्यसभा is the second level review body when a bill has to be converted into an act. It is very important point. You should note it. जो राज्यसभा की सेकंड लेवल राज्यसभा क्या है? सेकंड लेवल रिव्यू बॉडी है जो कि एक बिल को कन्वर्ट करती है एक एक्ट में हमारे देश में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर प्लेसेस सम रिस्ट्रिक्शन द राज्यसभा मेकिंग इट लेस पावरफुल देन द लोकसभा इन सम एरियाज। हमारे देश में कहीं पे लोकसभा से ज्यादा पावरफुल राज्यसभा है और कहीं पे राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल लोकसभा है इन सम एरियाज। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शंस की, जिसे हम विधानसभा इलेक्शंस भी कहते हैं, जो कि एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होते हैं और इन्हें कंडक्ट कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन नहीं, इन्हें इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करवाता, बल्कि इन्हें कंडक्ट करवाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। It is totally different from election commission. It has different authorities. ये अलग अथॉरिटी है, ये अलग अथॉरिटी है। ये स्टेट के मैटर को स्टेट्स के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। ओके, और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस हम कह सकते हैं। लोकसभा इलेक्शंस लोकसभा के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ओके। ये स्टेट असेंबली इलेक्शंस को हम कहते हैं एमएलए के इलेक्शन जो होते हैं। या इन दिस इलेक्शन एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज देयर वोट टू from their concerned constituency. Candidates who win the state legislative assembly election are termed as member of legislative assembly. इसमें अधिकार होता है हर नागरिक को हमारे इंडिया में उनकी रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में। कॉन्स्टिट्यूएंसी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वी कैन सी। कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली एक जोग्राफिकल एलोकेशंस होता है ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स का जोग्राफिकल एलोकेशन होता है, जो कि स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होता है और उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। सॉरी, Candidates who win the state legislative assembly election are termed as MLA. Okay. इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 500। हाउ मेनी? 500। और मिनिमम स्ट्रेंथ होती है 60 मेंबर्स। मैक्सिमम मेंबर्स 500 एंड मिनिमम मेंबर 60। द गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इसमें गवर्नर को अधिकार होता है कि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक मेंबर को चयनित कर सके।
कितने मेंबर को? एक मेंबर को। और हम लोकसभा के इलेक्शन में बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सके। ओके। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स होल्ड देयर सीट्स फॉर 5 years। इसमें जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी सीट्स को कितने साल तक होल्ड कर सकते हैं? 5 years। ओके। द लीडर ऑफ द पार्टी और द अलायंस विच सिक्योर्स मोर देन 50% ऑफ सीट्स टेक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो पार्टी अलायंस में आती है जिसकी 50% से ज़्यादा सीट्स होती हैं, उस पार्टी का जो लीडर होता है टेक ओथ, वो ओथ ले सकता है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। ओके। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस यानी विधान परिषद के इलेक्शंस की। बेसिकली ये इलेक्शंस डिफरेंट होते हैं। ये इलेक्शंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इसमें काउंसिल्स ऑफ द स्टेट्स। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली से बहुत अलग होते हैं। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का रोल होता है। इन इलेक्शंस में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। The size of the state legislative council can be more than 1/3 of the membership of the state legislative assembly. However, its size cannot be less than 40 members. 40 members होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए इसमें। The actual strength of a council is fixed by the parliament. जो actual strength है काउंसिल की वो कौन फिक्स करता है? By the parliament. Okay. 1/3 are elected by the members of local bodies such as municipalities, gram panchayats, panchayat samitis and district council. 1/3 मेंबर होते हैं इसमें, लोकल बॉडीज होती हैं इसमें इन्वॉल्व, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, पंचायत समितिज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं। 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/3 मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। हाउ मैनी? 1/3 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। और 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। और 1/6 जो मेंबर होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नर। ओके। उनको नॉमिनेट करता है गवर्नर 1/6 मेंबर को। और उसमें कुछ पर्सन्स होते हैं विद have good experience in fields such as literature, science, arts and the cooperative movement and social service. 1/12 member are elected by person who are graduates of 3 years. 1/12 member होते हैं जो कि graduates होते हैं residing in the state. 1/12 are elected by the person engaged for at least 3 years in teaching an education institution. और 1/12 मेंबर होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट में जो है टीचिंग करते हैं, इसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में विद इन स्टेट, नॉट मोर देन सेकेंडरी स्कूल्स। सेकेंडरी स्कूल्स की टीचर नहीं होनी चाहिए, वो होने चाहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की। ओके। या कंटिन्यू। नाउ वी विल डिस्कस ग्राम पंचायत इलेक्शंस। A ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत इज द ओनली ग्रास रूट लेवल्स ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद द व्यू पॉइंट ऑफ विलेज लेवल। दिस फॉर्मलाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। या यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया एट द विलेज और स्मॉल टाउन लेवल। छोटे छोटे जो गाँव देहात हैं वहाँ ये होते हैं, ये वाले इलेक्शंस वहाँ पर होते हैं। एंड एज अ सरपंच, और वहाँ जो सरपंच जिसे हम मुखिया बोलते हैं वो इलेक्टेड एज अ हेड, उनका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इंडिया हैज़ अबाउट 250,000 ग्राम पंचायत। इंडिया में 250,000 क्या है? ग्राम पंचायत हैं। हाउ मैनी ग्राम पंचायत? 250,000। ओके।
द ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, ग्राम पंचायत को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, और वार्ड मेंबर में, कमिश्नर में, इसको हम पंच कहते हैं और पंचायत मेंबर कहते हैं। डायरेक्टली जो है उनको विलेजर्स चयन करते हैं, उनका चयन जो होता है वो डायरेक्टली थ्रू विलेजर्स होता है। पंचायत इज चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज नोन एज सरपंच, सरपंच बोलते हैं हम उसे, मुखिया कहते हैं गांव का। दैट्स ऑल अबाउट। फ्रेंड्स, पंचायत समिति इलेक्शंस को भी कंडक्ट कौन सी बॉडी करवाती है, वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, पंचायत समिति ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एंड तालुका पंचायत आर रूरल लोकल गवर्नमेंट्स पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन PRI ऑपरेटिंग एट तहसील लेवल। द पंचायत समिति एंड लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। ये भी विलेज लेवल के इलेक्शंस होते हैं जिसमें कंप्राइज्ड होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर पीपल्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड विमेन इन्वॉल्व होते हैं इसमें। के फार्मर्स भी होते हैं और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए जो है इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और उसके जो हेड होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति। पंचायत समिति उनको चयन करती है। ओके, जिला पंचायत इलेक्शंस, जिला पंचायत इलेक्शंस बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एनी डिस्ट्रिक्ट और विलेज, जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, बहुत से इसके नाम हैं और ये 3rd ईयर लेवल के 3rd स्टेज के इलेक्शंस होते हैं। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इसके मेंबर होते हैं जिला परिषद के। ठीक है, इसमें मिनिमम मेंबर्स होते हैं 50। हाउ मेनी मेंबर्स? मिनिमम मेंबर्स होते हैं 50 और मैक्सिमम मेंबर होते हैं 75। इलेक्ट किए जाते हैं वो इंडियन एडल्ट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। द इलेक्टेड मेंबर हैव अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स उनका इलेक्टेड पीरियड, टेन्योर होता है। दीज काउंसिलर चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम इलेक्टोरल डिवीजन इन द डिस्ट्रिक्ट। ओके, जो परिषद है वो हेडेड करती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से। हेड होता है उसका और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। वो कौन होता है? एक IAS ऑफिसर होता है, हु इज एन IAS ऑफिसर। ओके, और एक सीनियर स्टेट सर्विस ऑफिसर होता है, हो सकता है। हेड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द जिला परिषद। उसकी मेन जॉब क्या होती है? सुपरवाइज करना डिवीजन को ऑफ द परिषद की और असिस्टेड बाय डिप्टी CEOs एंड अदर ऑफिसर्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल ऑफिसर। उनको इलेक्शंस को सुपरवाइज करना, उनका निरीक्षण करना। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया फॉलोज FPTP सिस्टम। FPTP स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ओके, या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन इंडिया। इन दिस कंट्री को जो है डिवाइड किया जाता है स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स में, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और एक होता है PR यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ओके, इसमें लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज को डिमार्केट के निशानदेह करा जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हो सकती हैं। हम कह सकते हैं इसमें पूरी कंट्री जो है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है। ये सिस्टम इंडिया फॉलो नहीं करता। FPTP में एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है और इसमें PR सिस्टम में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ओके,